नमस्कार दोस्तों। अभी हम इस समय केवीएस पीजीटी में जो राइटिंग स्किल से क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू बेस्ड उनको हम कवर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। कुछ तो अभी तक यही पूछते थे कि क्या लिखना होगा उसमें, लेकिन जैसा कि केवीएस ने अपने नोटिफिकेशन में निकाला था कि 180 क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे सीबीटी मोड में होंगे और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मींस ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आपका कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। तो अब राइटिंग स्किल चूँकि होता क्या है कि हमें उसमें जो भी ये 12th क्लास में है, 11th में भी है, तो उसमें जनरली ये राइटिंग पर्पस से होता है, उसमें लिखने को होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर राइटिंग फॉर्मेट में उनको फॉलो किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो ऐसा ही मेरा एक वीडियो मैंने अभी कल बनाया था, जिसमें मैंने नोटिस राइटिंग से कैसे क्वेश्चंस आएंगे उनको एक्सप्लेन किया था। Actually, there are so many candidates who are from south region or northeast, or whether who are not good in Hindi. So they asked me to dictate or to explain the things in English. That's why now onward I will start teaching on both the languages, Hindi and English as well. So yesterday I made a video on notice writing. How many types of means whatever the types that you can say of notice writing, or whatever the topics including in writing skills, like poster making, advertisement, classified, and invitation and reply, letter writing, and so many things, article writing. So they are going to ask multiple choice questions. So which type of questions they will ask, so I covered those in my one of previous video. So here this video is based on the MCQ that is related to invitation and reply. Actually we have to send the invitation to other persons, maybe they are our relative or friend, or you can say some official persons who are not so much known to us. So in this case, when we are just sending them invitation, or we are just inviting them, we also expect a reply, and the reply may be acceptance or refusal. It depends on the circumstances of that person, so individual. So now here we are going to discuss what is the format of invitation and reply. As you see, invitation in my slide, this is written in blue ink, that invitation and reply, formal and informal, means now with this we can infer that there are two types of invitation and reply, that is one formal invitation and reply, and the second is informal. Means now as we can see here, man is social by nature, hence interaction and communication between human beings is quite natural, as we all know. Means we are living in a society. So in a society we interact with each other or one another. So in that case we organize some fest or events or ceremonies or any function. So we send the invitation so that they can attend the party, function, or whatever we are going to organize. So in that case we have to know what is the correct format. So here we may share views either orally or in writing. Means sometimes we just make a phone call, or somebody just we went through and he came across us, and we just say orally that this function is going to take place and I am inviting you, please do come. In this way orally you can say, but that is what the written communication is.
much important that nowadays also somewhere we are sending the cards, the letters. So in that case it is necessary to be aware about these things. So now here it is written, we hold many social functions such as celebrations of birthday, engagement, wedding, marriage anniversary, appointment, promotion, invitation form an important part of social dealings. An invitation is a request to an individual to come or go somewhere or to do something. So here are the most important things you say. Invitation is a part of social dealing, we can say. Okay, means suppose that if it is coming in our option social dealing, so obviously invitation is for social dealing. So an invitation is a request to an individual to come or go somewhere or to do something. Now as we all know invitation can be both formal and informal. जैसा कि हमें पता है ये दोनों तरीके का हो सकता है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। और इसमें सोशल डीलिंग होती है, सोसाइटी से रिलेटेड होता है क्योंकि हम सोशल हैं तो सोशल होने के लिए हमें लोगों को इनवाइट भी करना पड़ता है, लोग हमें इनवाइट करते हैं तो हम वहाँ भी जाते हैं। दोनों चीज़ें इसमें रहती हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके का होता है। Now formal invitations are formal letters. They can be printed on cards or can be drafted in the form of social letter. So here the important thing, you can categorize the invitation in social letters category. Okay, so now as already we told that by a card means the means of invitation is a card and a letter. So there are two things: by sending card you can invite, or by writing a letter you can invite someone. सो हेयर मतलब एक कार्ड है और एक सोशल लेटर्स हैं, उनके जरिए हम लोगों को इनविटेशन भेज सकते हैं। अब है क्या कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है तो वो थोड़ा समझेंगे हम। नाउ वी विल फिगर आउट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड इनवाइटिंग गेस्ट टू बी प्रेजेंट ऑन particular occasions. Such invitation do not include the name of the addressee. That is important part. Means here it is written, printed invitation card inviting guests to be present on particular occasion. Such invitation do not include the name of the addressee. It means in a printed invitation card the name of the addressee should not be included. Okay, so it is the important fact to be remembered. Next, formal typed means handwritten letter addressed to a VIP invited to preside over a social, cultural, and educational function. In these invitation to VIPs, name of the addressee appears prominently. Means if you are writing a formal letter, means you are just inviting someone by giving a formal letter. So here in these invitation to VIPs the name of the addressees appears prominently. It means in printed the name of the addressee is not important, but here it is the utmost important. This is the basic difference you must remember. Formal invitations are formal and polite, pleasant and courteous. Okay, it is the important line. These are formal, polite, pleasant and courteous. Formal invitations generally take the shape and form of personal letters. Means now we are just talking about informal invitations. Okay, these things are about formal and now we are going to start informal. Okay, मीन्स अभी फॉर्मल में जो हमने कुछ पॉइंट्स पता किए, एक क्या है, इनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, प्रिंटेड से, दूसरा क्या है लेटर के जरिए, और इन लेटर को हम सोशल लेटर्स में रखते हैं, और ये एक तरीके का हमारा क्या होता है, एक सोशल डीलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताया कि प्रिंटेड इनविटेशन में
जो नेम ऑफ द एड्रेसी है वो नहीं मेंशन किया जाता है। जबकि अगर आप लेटर के थ्रू फॉर्मल लेटर लिख रहे हो किसी को बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, तो उसमें ज़रूर अगर कोई वीआईपी पर्सन है तो उसका एड्रेस, नेम ऑफ द एड्रेसी ज़रूर रहेगा। नाउ अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल की। Informal invitations generally take the shape and form of personal letters. We use these to invite our friends, relatives and dear ones. जैसे कि मैरिज पार्टी हुआ, बर्थडे पार्टी, या कोई और मान लो हाउस ओपनिंग सेरेमनी, या ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बुलाते हैं, तो वो होता है आपका इनफॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, अब ये भी आप कार्ड के थ्रू इसको भी भेज सकते हैं। We use these to invite our friends, relatives, and dear ones with whom we have intimate, personal, and friendly relations. In informal invitation, the tone and treatment is relaxed, informal, and friendly. Points to be remembered. ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फॉर्मल इनविटेशन के क्या पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंट आल्सो। मीन्स a formal invitation is normally a single sentence presentation in third person। मीन्स थर्ड पर्सन में हमें लिखना है। किसमें लिखना है? थर्ड पर्सन में। फॉर्मल इनविटेशन अगर आप लिख रहे हो तो आप उसको थर्ड पर्सन में लिखोगे, स्पेशली अगर वो प्रिंटेड कार्ड है। प्रिंटेड कार्ड है तो वो थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। हाँ, अगर लेटर आप लिख रहे हो तो लेटर में आप फर्स्ट पर्सन यूज कर सकते हो। ठीक है, formal invitation are generally printed invitation card. We use them to invite guests or some auspicious occasion like birthdays, wedding, inauguration of shops, house, it's okay। The invitation answers the questions who means किसे आप बुला रहे हो, whom when कब बुला रहे हो, where कहाँ बुला रहे हो, what time किस समय बुला रहे हो आप। ठीक, and for what purpose क्या है, means the occasion, नेम ऑफ द इनवाइटी जिसको आप बुला रहे हो, नेम ऑफ द होस्ट उस पार्टी को होस्ट कौन कर रहा है, डेट टाइम एंड वेन्यू। दीज थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन ए फॉर्मल इनविटेशन। ओके, द अदर डिटेल्स इंक्लूड नेम, डिजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर और होस्ट, और द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट और स्पेशल इनवाइट्स इन केस ऑफ एन ऑफिशियल इनविटेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। मीन्स दीज थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। Printed formal invitation don't include the name of that. As I told you, this is the most important part. Printed formal invitation don't include the name of the addressee. Remember this. This is most important. Next, invitation to VIP to preside over a function to carry the name of VIP prominently. Means if you are just inviting a VIP person, so the name of that person should be written there, and length as per CBSE guideline is limited to 50 वर्ड्स। जैसा कि नोटिस में भी हमने पढ़ा था, नोटिस में भी 50 वर्ड्स हैं, यहाँ पर भी 50 वर्ड्स की ही बात होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझे यहाँ पर। नेक्स्ट, जैसे कि ये फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट। सपोज दैट यू आर जस्ट इनवाइटिंग समवन, this is the format of printed card। Okay, so here you see what are the important aspects here। The name of uh, जो भी इनवाइट कर रहा है उसका, मिस्टर एंड मिसेज के एस भरद्वाज, रिक्वेस्ट द प्लेजर। और यहाँ पे वन थिंग आई वांट टू टेल यू, the invitation is always written in present tense। It means simple present tense, it means present indefinite tense। Okay, remember this, we use simple present tense। So request the pleasure of your company on the auspicious occasion of the marriage, there is for what you are inviting, of the daughter Nivedita with Achilles, means this son of this detail, and this is the date। Okay, and date and day, and this is the place, okay, and this is the time, all these things। And RSVP means it is also the important part of that। It means wait for reply, means reply के लिए यहाँ पे लिखा जाता है waiting for your reply।
Formal invitation not printed. This is the means you can say later in this way. Okay, this is in later. Now these are the important part of informal letter. In informal letter, you see these are called personal letters also. We send them to relatives, friends, and acquaintance. Okay, it means informal invitation are sent to our known ones, to whom we are so much acquainted. They are our close relative, friends, brother, sister, cousin, and parents, all those person, uncle, aunt, they are. So these letters are first second person presentation, means in this we can use the first person and second person. Okay, but in formal letter we always use third person, especially in printed card. So this is the basic difference. मीन्स यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटेड में हमेशा थर्ड पर्सन ही प्रोनाउन का यूज होता है. Personal feelings and emotions find an expression. The writer's address is given in the usual place. The salutation is usually dear plus name. This is the salutation. Means write dear and then name. Means suppose that you are sending the invitation to your friend and the name of your friend Mohan. So write dear Mohan. Okay. The date of writing is given, but the year is generally omitted. This is the important part. Means here you write the date, but the year is not necessary. The style and tone are relaxed and informal. Different tenses are used as a sense demand. Here you can say different tenses, but in printed card you must adhere to present indefinite tense. The complimentary clause is yours sincerely or yours lovingly. You can also say use yours lovingly. Okay, yours lovingly you can also use here. So now these are also some examples. Whether you are Naveen Neha, the secretary of the youth club of your locality, you are organizing an inter-school group song competition. Invite a prominent musician to act as one of the judges. So here you just whatever you are known to that person, so you can invite in this way. And these are the writing replies, formal and informal replies. So here there are some aspects, some points of these. The formal reply is usually very short, it is brief and to the point. Means here it is very short, brief and point. The quality of a good reply is that it must always be pleasant. Even while declining the invitation or expressing inability to attend, one must be polite and courteous. Means suppose that if he is just giving grant, or you can say he is accepting that, means he is supposed to become, then also the tone should be polite and courteous. And even you are just refusing or declining that invitation, the same tone must be followed, means it should be polite and courteous. Formal replies demand a formal tone and treatment. There is no room for unnecessary details for superfluous matter in them. Means just point to point you write. If you are just accepting or refusing, only be a specific point. So there is no room for unnecessary details. An informal reply or private letter may, however, express personal feeling or desire in an intimate style formal role. But in informal reply, you can add on your things. So now formal reply acknowledge and the invitation, express thank in third person. Okay, mention acceptance or regret. Means if you are able to come, then accept acceptance. If you are not able to come, then express regret. Specify the reason for refusal, and when you are going to refuse, when you are refusing that I am not able, then you just write what is the reason of not able to attending that ceremony. Be brief and specific. Be formal in tone and treatment. Do not exceed the word limit 50.
ओके, मीन्स ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, हमें थर्ड पर्सन में ही रिप्लाई देना है। फॉर्मल अगर रिप्लाई आप दे रहे हो तो आपको फॉर्मल रहना पड़ेगा, उसमें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ेगी। अगर आप इनफॉर्मल रिप्लाई दे रहे हो फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, तो उसमें आप अपनी पर्सनल फीलिंग को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो और वहाँ पे टोन थोड़ी सी आपकी इनफॉर्मल हो सकती है। और चाहे आप रिफ्यूज़ करो चाहे आप एक्सेप्ट करो, आपकी जो लैंग्वेज होगी वो पोलाइट एंड कोर्टियस ही होनी चाहिए, और वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स ही है। इनफॉर्मल रिप्लाईज में क्या होता है, एक्नॉलेज द इनविटेशन इन फर्स्ट पर्सन। इनफॉर्मल में आप फर्स्ट पर्सन यूज कर सकते हो, फॉर्मल में थर्ड पर्सन ही रहेगा। यूज सेकेंड पर्सन फॉर द सेंडर ऑफ इनविटेशन, मेंशन एक्सेप्टेंस और रिग्रेट, स्पेसिफाई द रीजन इन केस ऑफ रिफ्यूजल, यूज वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ 50। तो यहाँ पर भी कुछ आपके ये एग्जाम्पल्स दिए हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज के, ठीक है। तो ये था एक, मतलब एक्सप्लेन किया अभी मैंने। अब कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को। एक जैसे बुक है जो मैंने शेयर भी करी थी, जिसका रेफरेंस मैंने नोटिस राइटिंग में भी लिया था। उसमें कुछ एमसीक्यूज़ दिए हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं सोच रहा हूँ उसको क्यों ना करेक्ट कर दूँ। तो थोड़ा सा उसी को लेकर, ये उसी बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसके पास पहुंची हो बुक वो अच्छी बात है, जिसके पास ना पहुंची तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ एमसीक्यूज़। कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे, जैसे पूछा गया कि एन इनविटेशन कैन बी, इनविटेशन हो सकता है, मीन्स फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ एंड बी। तो अभी मैंने पढ़ा बोथ एंड बी मीन्स फॉर्मल, इट कैन बी आल्सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ, मीन्स फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोन ऑफ फॉर्मल इनविटेशन, जैसे कि फॉर्मल इनविटेशन है तो उसकी टोन क्या होनी चाहिए। तो फॉर्मल की जो टोन अभी मैंने पढ़ा, ऑप्शन नंबर सी, पोलाइट होनी चाहिए, प्लीजेंट होनी चाहिए, ठीक है। पोलाइट होनी चाहिए, प्लीजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोन ऑफ एन इनफॉर्मल इनविटेशन, एक्चुअली ये अलग अलग हो गया लेकिन ये एक में ही है, ये इनफॉर्मल है। मीन्स पूछा जा रहा है यहाँ पे इनफॉर्मल इनविटेशन की टोन क्या होनी चाहिए। तो इनफॉर्मल की, इनफॉर्मल तो हो सकती है लेकिन कोर्टियस रहेगी, मतलब ये कोर्टियस दोनों में रहेगा। तो इनफॉर्मल बट कोर्टियस हो जाएगा यहाँ पे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिप्लाईज टू इन्विटेशंस आर अवेलेबल, अभी मैंने पढ़ा तो इसमें भी देर आर टू, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन व्हाट टाइप ऑफ इनविटेशन इज़ टू राइट व्हेन इनवाइटिंग द प्रेसिडेंट, ये गलत दिया है तभी मैंने इसको करेक्ट करने की कोशिश करी। तो ये आपका प्रेसिडेंट है यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिमेंबर दिस, दिस इज द प्रेसिडेंट। Suppose that you are inviting President of India a school annual day celebration. So, what type of invitation? So, obviously, it is formal. And here it is not given. Means whatever they are answers, फिफ्थ का सी दिया है तो इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। EFGH है ऑप्शन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर्मल होगा, ठीक है। तो बाकी सिक्स क्वेश्चन है नहीं, तो यही कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके अलावा भी मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, उसको हम करेंगे। तो ये है प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड डू नॉट कंटेन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड की बात करी जा रही, अभी मैंने पढ़ा था, मीन्स जस्ट वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। तो नेम ऑफ द एड्रेसी, इन प्रिंटेड नेम ऑफ द एड्रेसी शुड नॉट बी रिटन, ओके। तो इसमें ये नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा। फॉर्मल टाइप्ड इनविटेशन टू ए वीआईपी मस्ट प्रोमिनेंटली कंटेन, तो उसका तो नाम होना चाहिए, तो नेम ऑफ द एड्रेसी उसका तो होना चाहिए, तो इसमें ज़रूरी है ये, ठीक है। तो इसमें नेम ऑफ द एड्रेसी प्रोमिनेंटली उसको लिखा जाना चाहिए, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था। देन ये कुछ क्वेश्चंस हैं, फिल अप द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन। सपोज दैट दिस इज द प्रिंटेड कार्ड, मिस्टर एंड मिसेज YVK Swami, and here you should give the means answer. What should be the correct sentence? Question number 3. Okay, it is written question number 3. So question number 3 is this. So what is the suitable option that you can put there? So fill up the blanks with the appropriate answer option. Request your company,
requesting the presence of your pleasure, request the pleasure of your presence. So as we told you, we must adhere to present indefinite tense or simple present tense. So the option is C, that is correct, means request the pleasure of your presence. Then question number 4, they are asking, question number 4, here what is the purpose of inviting, or so here should be this is the question number 4, there is the blank. So on the prestigious occasion, on the winning occasion, on the traditional occasion, on the auspicious occasion, ठीक है। तो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑन द ऑस्पिशियस अकेजन। ओके, फोर्थ का डी हो जाएगा। जैसे कि आंसर दिए भी हैं इसके, ये सही भी हैं, कुछ ऊपर गलत दिए थे तो उनको मैंने करेक्ट करा दिया। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो द फॉर्मेट, यू कैन से यू आर रानी एंड राजा वट एवर यू of AU201 Ultimate Signature Bengaluru. You have just purchased a new house. You decide to have a housewarming ceremony and invite your cousin Vani. Write the invitation in 50 words giving all necessary details. AU201 Ultimate Signature Bengaluru. And in this way, you are going to write 20 October 2022. Question first. Here, what you should write? They are asking. So, this is the question one. Obviously, you are inviting your cousin Vani, and this is informal invitation. So, it must be there option A, Dear Vani. First time, Dear Vani. Okay. Address हम इसको लेटर के रूप में कर रहे हैं, तो इस वजह से डियर वानी यहाँ पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आई इन्वाइट यू एट द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ योर न्यूली परचेज्ड हाउस इन दिस अल्टीमेट सिग्नेचर बेंगलुरु। द पूजा is at 10 a.m. It will be followed by lunch. Question 3. Here they are written question 3, but it is question 2. Okay, this is the mistake. Here it is should be written question number 2. So this is the question number 2. So the option C is correct. Kindly do join us on this. And then question number, this is the 3. Okay, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस बुक में। ये बुक का ही मैंने पीडीएफ बनाया है, तो ये कुछ इसमें है जो थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग नहीं करी गई है, तो कहीं मतलब थोड़ा सा केयरलेस हुए हैं ये बुक को बनाने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, डू ज्वाइन अस ऑन दिस। तो यहाँ पे ऑस्पिशियस आ जाएगा अगर ऐसा कुछ हमें मिलता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्वियसली बी है सही, ऑस्पिशियस होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ कि मैं करेक्ट कराना चाहता हूँ आप लोगों का। उसमें बुक में गलतियाँ हैं, ये सो मैनी एरर्स देयर आर इन दैट बुक, सो यू कैन करेक्ट इट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो यहाँ पर जो है आप क्या लिखोगे, योर्स लविंगली लिखोगे। क्या लिखोगे? लविंगली, क्योंकि अपनी कजिन को लिख रहे हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा योर्स लविंगली, ऑप्शन सी। ये 3 नहीं, ये 4 है। ठीक है, तो ये कुछ हैं चीज़ें यहाँ पर, ये उस बुक से कुछ ली हैं। अब हम, आई होप ये आपको कुछ हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं, उनको देखते ज़रा। ये हैं, ठीक है, ये है विच वन इज इनफॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इनवाइटिंग समवन। अगर आप किसी को बुला रहे हो तो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है? तो आई वुड लाइक टू इनवाइट, ऑप्शन नंबर सी, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू कम टू माई बर्थडे पार्टी। ओके, क्योंकि बाकी में क्वेश्चन किया गया, वुड यू लाइक टू कम टू माई वेडिंग पार्टी, कम, कुड यू लाइक टू कम टू माई वेडिंग पार्टी, डू यू वांट टू कम टू माई वेडिंग पार्टी। तो ये सही नहीं है, सी ऑप्शन सही है। What is the purpose of invitation expression?
पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, टू इनवाइट समवन टू कम टू ओकेजन पार्टी, इनवाइट करते हैं। टू परस्यूड, न तो मनाते हैं। टू टेल समवन अबाउट सेलिब्रेशन, नहीं। टू एक्सप्लेन समवन अबाउट, नहीं। इनवाइट करने के लिए लिखते हैं, तो पर्पस इज टू गिव इन्विटेशन। विच वन इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इनवाइटिंग समवन? ऊपर इनफॉर्मल पूछा गया था, यहाँ पे फॉर्मल बात वही है, ऑप्शन सी ही सही है। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू कम टू माई पार्टी, क्योंकि लेट्स गो टू माई पार्टी इज इनकरेक्ट, इट्स पार्टी टाइम इनकरेक्ट, कैन यू ज्वाइन टू माई ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आई, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यू आर डॉक्टर स्टेंजिन, ए सर्टिफाइड आर्ट थेरेपिस्ट फ्रॉम ले, यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय जीडी पब्लिक स्कूल जम्मू to conduct a seminar for students on art therapy, the way forward. This seminar is to introduce your student to the usefulness of art in analysis using appropriate format and fluency, appropriacy of style and tone, dealing with personal and social problem, writing your reply in about 50 words, accepting the invitation. So 25, Jammu State, Jammu. This is it. So question number 1. So what is the question number 1? Here should be, you can say, this is an invitation in the format of letter. Okay. So this is the address. They just put there. Okay. 25, Jammu State, Jammu. This is the date. So what should be there? The address of invitee, जिसे आप मीन्स या द एड्रेस ऑफ एड्रेसी, ओके, द नेम ऑफ एड्रेसी, जिसको आप बुला रहे हो, जिसको आप भेज रहे हो, तो उसका यहाँ पे पड़ा होना चाहिए। तो ऊपर कौन है भाई जिसको आप भेज रहे हो? ये हैं आपके जो है, यू आर दिस इज यू हैव बीन इनवाइटेड बाय जीटी पब्लिक, तो आप रिप्लाई दे रहे हो। ओके, तो ये आप क्या कर रहे हो, इनविटेशन आपको भेजा गया है, जिसको सबसे पहले पढ़ेंगे। ये आपके पास इनविटेशन आया है और फिर आप उसका रिप्लाई भेज रहे हो, तो इसमें उसी को भेजेंगे जिसने आपको इनविटेशन भेजा है। तो इसके हिसाब से सब्जेक्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन सर। तो यहाँ पर हो जाएगा टू द प्रिंसिपल जीडी पब्लिक स्कूल जम्मू, या फ्रॉम द आर्ट टीचर जीडी पब्लिक स्कूल जम्मू। सी है द प्रिंसिपल जीडी पब्लिक स्कूल जम्मू। फिर है टू द प्रिंसिपल जीडी पब्लिक स्कूल जम्मू। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, द प्रिंसिपल जीडी पब्लिक स्कूल जम्मू, क्योंकि टू का होता नहीं है, टू नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, तो इन दो में टू आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा। और यहाँ पे आर्ट टीचर को भी हम नहीं लिखेंगे, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक समझ गए क्यों यहाँ पे द प्रिंसिपल जीडी पब्लिक स्कूल जम्मू लिखा जाएगा, न कि टू द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहे हैं ये, थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन फॉर ए सेमिनार ऑन आर्ट थेरेपी, द वे फॉरवर्ड एंड योर कंसर्न फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू द यूजफुलनेस ऑफ आर्ट इन डीलिंग विद पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, आई वुड लाइक टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब ये क्या, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपके सामने रखे हैं। टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद द यंग माइंड्स ऑफ योर स्टीम्ड स्कूल, to introduce a student to the usefulness of art and analysis using appropriate format and fluency, appropriacy of style and tone, dealing with personal and social problems, to share with the students the usefulness of art and analysis using appropriate format and fluency, appropriacy of style and tone, dealing with problems personally and socially, to share my adventures with the young brains of your school। तो यहाँ पे adventure नहीं, to share my experience, that is most correct, मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद द यंग माइंड्स ऑफ योर स्टीम्ड स्कूल। यही हमें सही लग रहा है, बाकी उसमें पूरी हमें गाथा नहीं लिखनी है, जैसे बी ब्रीफ रहना है, जैसा कि बताया गया था, हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, सारी चीज़ों को हमें उसमें डिस्क्राइब नहीं करना है, अभी ऊपर ही मैंने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो आई नाउ कंसेंट टू कंडक्ट द सेम, आई हेयर बाई कंसेंट टू कंडक्ट फॉर द सेम, I hereby consent to conduct for the same, I hereby consent to conduct the same। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, I hereby consent to conduct the same, मतलब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया,
कंसेंट अपनी दे दी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे यू आर फैज फलक मजूमदार लिविंग एट 39 उधमपुर कॉलोनी शिमला, यू डिसाइड टू होल्ड अ डिनर पार्टी टू कॉन्ग्रेचुलेट योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन देयर गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी। जैसे कि आप वहाँ रह रहे हो, आपका ये एड्रेस दिया है, आप एक डिनर पार्टी रखते हो, वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कांग्रेचुलेट करते हुए उनकी गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी पर। ड्राफ्ट ए फॉर्मल इनविटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स टू अटेंड ए ग्रैंड डिनर एट होम। तो ये इस तरीके का आप इनविटेशन फ्रेम करते हो। तो ये प्रिंटेड एक कार्ड है। तो आप कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, मिस्टर एंड मिसेस फैज़ मजूमदार। क्वेश्चन 1 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑफ द। तो ये यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑन द प्रेस्टिजियस अकेजन, ऑन द बिनिंग अकेजन, ऑन द ट्रेडिशनल अकेजन, ऑन द ऑस्पिशियस अकेजन। ऑलवेज सेलेक्ट ऑन द ऑस्पिशियस अकेजन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉइंट पूछा गया है। तो यहाँ पे RSVP आता है, जिसका मतलब होता है रिप्लाई करिए आप। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ऑप्शन ए RSVP। ठीक है, देन है क्वेश्चन ये 3 आपका है, इसको पढ़िए। यू आर रुक्मणी राजा ऑफ आर्ट 201 फोर्ट रोड चेन्नई, यू हैव जस्ट परचेज न्यू हाउस, यू डिसाइड टू हैव ए हाउस वार्मिंग सेरेमनी एंड इनवाइट योर कजिन बालाजी, राइट द इन्विटेशन इन 50 वर्ड्स गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स। तो अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे डियर बालाजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए, डियर बालाजी। ठीक है, देन आई इनवाइट यू एट द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ अवर न्यूली परचेज्ड हाउस इन अर्बन स्टेट, द पूजा इज एट 10 AM, इट विल बी फॉलोड बाय लंच एट 1 PM, काइंडली डू ज्वाइन अस ऑन दिस। यहाँ पर भी कोई डे है तो ऑस्पिशियस डे हो जाएगा, अगर ऑप्शन में मिलता है हमें, ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑस्पिशियस डे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तो ऑब्वियस ही कजिन को भेजा गया, तो योर लविंगली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है योर स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज ए टॉक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग आर्ट एजुकेशन एट वेरियस लेवल्स, यू प्लान टू इनवाइट द डायरेक्टर दलई स्कूल ऑफ आर्ट एज ए की नोट स्पीकर, एस CCA कोऑर्डिनेटर ऑफ विद्या मंदिर विद्यालय, ड्राफ्ट एंड इनवाइट फॉर द सेम गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल। जैसे आपको जो है बुलाना है, मतलब आपका जो स्कूल है वो एक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग आर्ट एजुकेशन को जो है इनवाइट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, आपको डायरेक्टर को बुलाना है, डायरेक्टर को इनविटेशन भेजनी है उनको की नोट स्पीकर के रूप में, ताकि वो वहाँ पे आके अपना कुछ चीज़ें बताएं, तो वक्ता का काम करें। तो आप कैसे इनविटेशन लिखोगे, तो जैसा कि ये लेटर के फॉर्मेट में है कि विद्या मंदिर विद्यालय ये है, ये एड्रेस है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, हाँ ये है टू द डायरेक्टर दिल्ली, पहला ऑप्शन है आपका टू द डायरेक्टर दिल्ली आप स्कूल, हमने कहा जिसमें टू आ जाए नहीं होगा। टू द मैनेजर, मैनेजर की बात ही नहीं है। द CEO, CEO भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, द डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर को आप इनवाइट कर रहे हो, तो डायरेक्टर वाले 2 ही ऑप्शन है, ए एंड डी। देर आर ओनली 2 ऑप्शंस रिलेटेड टू द डायरेक्टर, लेकिन यहाँ पर 2 की वजह से ड्यू टू यूज ऑफ 2 it is incorrect, so the correct option is D. okay, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्ट, आप जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है आपका कि व्हाट इज द सब्जेक्ट देयर, तो सब्जेक्ट आप क्या रखोगे, सब्जेक्ट इनविटेशन टू बी द की नोट स्पीकर, एक्सेप्ट इनविटेशन टू बी द की नोट स्पीकर, एग्री टू बी द की नोट स्पीकर, एग्रीमेंट टू। तो यहाँ पर ये एग्री और एग्रीमेंट ये तो आपके चले ही जाते हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे, बचते हैं 2, इन्विटेशन और एक्सेप्ट इन्विटेशन। तो सबसे फॉर्मल है जो वो इन्विटेशन टू बी द की नोट स्पीकर, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कन्फर्मेशन ऑन द अर्लीस्ट, कन्फर्मेशन एट द अर्लीस्ट, कन्फर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल, कन्फर्मेशन क्विकली। तो जैसा कि स्पेलिंग से भी हमें पता चलता है, इसकी स्पेलिंग गलत है तो बी वाला सही हो जाएगा, कन्फर्मेशन एट द अर्लीस्ट। ठीक है, यही लिखते भी हम कन्फर्मेशन एट द अर्लीस्ट, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं थोड़े से आपको हेल्प कर सकते हैं इनविटेशन एंड रिप्लाई से। तो इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट आज कंप्लीट कर लिया है राइटिंग स्किल का। धीरे धीरे ऐसे ही
एक एक दो दो क्वेश्चन इनसे बनेंगे। तो मोस्टली इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते रहिए वीडियोस को, काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो आएगा तो आपको मिल जाएगा। जैसा कि एग्ज़ाम हमारे जस्ट एक महीना भी नहीं है हमारे पास, मुश्किल से 20-25 दिनों के बाद ही होने वाला है। तो ये जल्दी से हम इनको कवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब हम।